Yes, hello to everyone. Today is 11th of December, or I welcome you all to this new daily news digest session. I First of all, let's try and figure out what is the importance of 11th of December. So there are two major important events which are associated with this particular day. First is this is also the date when the first Anglo-Sikh War basically began. This was in 1845 to 46, and this is a very important war because this war was fought between the uh, ever expanding British Empire and the very significant and prominent and powerful Sikh Empire. What was the outcome of this particular war? It eventually led to the British taking over the Sikh Empire, and this led to the expansion of the British to as much as northwest of the entire country. So the last empire which was there was largely the Sikh Empire. So this is one aspect. Second is another thing which is very important is this is the birth anniversary of our ex-president Pranab Mukherjee, 11th of December. Why this day is important? Because he is the 13th president of the country who served from 2012 to 2017, and he is the first individual from the state of Bengal to serve as the president of the country. Now, with this, I would like to start the articles. I have three articles for today. जो पहला आर्टिकल है मेरा वो है साउथ अफ्रीका नमीबिया टर्की बैक इंडिया इन अपोजिंग अ चाइना लेड डब्ल्यूटीओ पैक्ट ऑफिशियल. तो मुझे इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना है बिकॉज दिस इज अ पैक्ट विच इज बाय द डब्ल्यूटीओ एंड यूजुअली व्हाट हैपेंस इज whenever there is something in news related to an international body, it automatically becomes important from our exams perspective. तो उस संदर्भ में इसको देखेंगे. चाइना लेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट. पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखेंगे आप, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस एग्रीमेंट हैज गेन्ड द सपोर्ट ऑफ 128 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. बट there are some very important countries like India, South Africa, Namibia, and Turkey, which are continuing to oppose this particular initiative due to its potential to undermine the policy space of weaker nations. Right? So this is something about it. This eventually becomes even more important because जो US-China trade war है, this is going to further intensify because of the election of President Donald Trump. And ultimately, these investments are increasingly moving to ASEAN countries, Association of Southeast Asian Nation countries, as Chinese firms have increased their overseas assets to record levels. So Chinese firms are heavily invested in ASEAN. Many of these investments are going towards ASEAN, and this is not something which is acceptable to developing countries like India. Apart from that, another factor which needs to be remembered here is that the global investment climate and international cooperation, this needs to be facilitated through FDI flows among WTO nations. And this particularly benefits developing and least developed countries. तो अगर कुछ least developed और developing countries को इस चीज से फायदा नहीं हो रहा, तो this basically is a cause of concern, and they are vociferously, aggressively trying to counter this. This needs to be remembered. What is the story of this IFD? This basically was proposed in 2017 by China and other nations reliant on Chinese investments. And this agreement is supported by countries with substantial sovereign wealth funds. अब ये sovereign wealth fund अपने आप में एक term important है. Sovereign wealth funds basically are funds in which there is ample of money which is lying unattended, unaddressed, and this is usually of the sovereign of that particular country. For example, the biggest sovereign wealth funds are of countries like UAE and Saudi Arabia. So these are funds which are very eager to invest in countries where there is huge investment potential. However, experts argue the pact could harm India's interest and restricts its policy space on foreign direct investments. So what are the interests associated with India which can be hampered? First is per capita distribution of subsidies of fisheries. तो एक इस एस्पेक्ट को हम याद रखेंगे. इसमें कुछ डेटा लिखा है जो मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स देख लें और उसको अपने कॉपीज में नोट डाउन कर लें. फिर इसके अलावा another thing that basically is important for India's perspective is India wants to ensure that the livelihood of people associated with fisheries, it needs to be taken care of. तो अगर हमें दिखता है कि हमारे फिशरी जो से एसोसिएटेड या जुड़े हुए लोगों का इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वी बेसिकली स्टार्ट अग्रेसिवली टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दिस रिगार्ड. उस संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. In annual aggregate fisheries subsidies cannot be an accurate measure as they include both beneficial and subsistence subsidies linked to livelihoods which do not contribute to overcapacity or overfishing. तो कहीं ना कहीं WTO का ये agreement है, IFD इसका नाम है, China sponsored this agreement है, and this is not at the moment accepted by India, Turkey and the other like-minded countries. अगला आर्टिकल जो मैं पेश करना चाहता हूँ वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड. China's BRI isn't dying, it's changing. अब obviously Belt and Road Initiative is quite a old
proposition which China has put forward. Almost 10 years have passed since this came into picture. And this wants to transform the physical infrastructure in the entire world with China as the center of the world, जो इसका ओरिजिनल इंटेंट है. बहुत हद तक देखा जा रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज डाइंग या इट्स इम्पैक्ट इज रिड्यूसिंग, बट इट्स नॉट द केस. दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू से दैट इट इज डाइवर्सिफाइंग एंड नॉट रिड्यूसिंग. तो इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट इन मिड नवंबर चाइनीज प्रेसिडेंट, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस दिए हुए हैं. हालांकि इंडिया का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इससे, बट बीआरआई पे यू वी हैव ऑलरेडी हैड अ क्वेश्चन इन द मेंस एग्जामिनेशन. उस संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इनॉग्रेटेड $3.6 बिलियन चांसे पोर्ट इन पेरू. अब ये चांसे पोर्ट कहां पे है? दिस इज प्लेसेस इन न्यूज. तो मैपिंग के पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. यू शुड मेक अ नोट ऑफ दिस एज टू वेयर दिस चांसे पोर्ट इज लोकेटेड. The port is expected to have a significant impact in reshaping the global trade flows. सेकंड, फिर यहाँ पे नेपाली प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की बात हुई है, जो बीजिंग, चाइना एंड नेपाल, वहां पे उन्होंने लॉन्ग डिस्कस बीआरआई के इम्प्लीमेंटेशन की बात की है. नेपाल में वी हैव हैड अ चेंज इन गवर्नमेंट व्हिच इज वेरी फ्रीक्वेंट दीस डेज कि हर 6 महीने में वहां पे सरकार बदल रही है. तो जो करंट डिस्पेंसेशन है केपी शर्मा ओली का, इट इज स्लाइटली ओरिएंटेड टुवर्ड्स चाइनीज फैक्शन. तो देखा जा रहा है कि चाइना में वहां पे थोड़ा ज्यादा इस चीज का इम्पैक्ट दिखता है एंड दे आर प्रो चाइना. तो कहीं ना कहीं बीआरआई इज गोइंग टू गेट अ बूस्ट इन टर्म्स ऑफ नेपाल. फिर तीसरी जो बात यहाँ पे लिखी हुई है कि फाइनली इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसंबर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हेल्ड इट्स फोर्थ सिंपोजियम ऑन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जहां पे दे वंस अगेन पॉइंटेड आउट इट्स सिग्निफिकेंस एंड चाइना किस तरह से उस चीज को टैकल करता है. अब जब आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पढ़ेंगे तो साइमल्टेनियसली जो इंडिया ने अभी रिसेंटली G20 में एक इनिशिएटिव लिया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, that also needs to be read simultaneously because it is being considered as a counter to Belt and Road Initiative. तो उसको भी आप थोड़ा सा डिटेल में देखें. कैसे कहा जा सकता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज चेंजिंग एंड नॉट एंड हैज नॉट कम टू एन एंड? उस संदर्भ में अगर देखें तो ये हार्ड कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी विद पॉपुलेशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज. दिस इज देयर न्यू मैंडेट और इस चीज पे ये काम कर रहे हैं. तो ये जो टर्म्स है, हार्ड कनेक्टिविटी, सॉफ्ट कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, दे आर ऑल important keywords which should be there in your answers. तो इनको आप ऐड कर सकते हैं. He also added that there should be a balanced advancement of major landmark projects and small but beautiful livelihood projects, consolidation of cooperation in traditional fields, steady expansion into emerging areas. So they have not given up on this particular project and they are still continuing to expand. This needs to be remembered. इसके अलावा जो इसमें डेटा अहम हो जाता है वो ये है कि किस तरह का फाइनेंशियल कमिटमेंट बीआरआई में दिया गया है. They are saying that it has already committed more than $1.053 trillion. This is a huge number. And जो investments BRI में हुए हैं, they have reached a record level at over 52%. This indicates China's greater risk-taking ability, not just by the private enterprises, but also the state-owned enterprises, which have been doing well in this regard. फिर नीचे जब हम जाएंगे तो इसमें जो एक और बात की है वो ये है कि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखा जाए तो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. बिकॉज since America is going to become aggressive now, it is going to retaliate with China on China by increasing the tariffs in terms of Chinese goods. तो कहीं ना कहीं BRI can be a way forward for China in this regard because ultimately China can look for other partners, other markets जहां पे वो अपने products को बेच सकता है. तो उस सेंस में this article is important. एक आर्टिकल और है, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम्स नहीं है बट कीवर्ड्स काफी सिग्निफिकेंट हैं जो मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को पता चले. आईटी मिनिस्ट्री टू प्रिपेयर रोड मैप फॉर पावर सप्लाई टू एआई डेटा सेंटर्स. इस आर्टिकल में ये एआई डेटा सेंटर्स की बात हुई है. अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एट इट्स पीक and you will find that its application, its utility is expanding like anything. बहुत तेजी से बढ़ रहा है. तो ultimately what we need is affordable quality power supply as well to make these data centers run for long period of time. लंबे समय तक ये चलते रहे, उसके लिए हमें इनकी जरूरत है. तो कहीं ना कहीं there is a road map that is being prepared by the MeitY, Ministry of Electronics and Information Technology, which wants to tackle this. फिर इस आर्टिकल में एक डेटा लिखा हुआ है, जैसे as per International Energy Agency, डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी यूसेज को डबल बाय 2026, सिर्फ 2 साल के अंदर जितना अभी यूज हो रहा है उसका दुगना हो जाएगा. मेकिंग द चैलेंज फॉर कंपनीज टू बिकम नेट जीरो और कार्बन नेगेटिव बाय 2030 इंक्रीजिंगली अनअटेनेबल बिकॉज वी हैव गिवन a deadline to become net zero by 2030, and this looks difficult because you need more power to let these industries run. This has forced companies like Google and Microsoft, who have big stakes in AI game, signing deals with nuclear power plants to purchase energy for their data centers because traditional या जिन्हें हम कहते हैं कन्वेंशनल पावर सोर्सेस, दे हैव प्रूव्ड टू बी इनएडिक्वेट. तो न्यूक्लियर पावर की तरफ वो लोग जा रहे हैं.
फिर इसी संदर्भ में एक आर्टिकल लिखा, कुछ और डेटा लिखा हुआ है कि S&P Global has said that India currently has a least data center capacity of 1 to 3 gigawatt, which is the highest compared to other emerging markets like Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam. A majority of the capacity is located in Mumbai, followed by Chennai, Delhi, etc. ये इतना डिटेल में नहीं जाना हमें, बट ये याद रखना है कि कितनी डेटा कैपेसिटी है और कितनी पावर कैपेसिटी है और कितने की जरूरत है। फिर इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात की। केपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड दिस गोज टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक सिस्टम्स, और कुछ नंबर्स और दिए हुए हैं जिनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ पावर प्लांट्स की बात की है, जैसे खावड़ा पावर प्लांट। खावड़ा पावर प्लांट इज बेसिकली लोकेटेड इन गुजरात, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द अडानी ग्रुप। तो आप लोकेशन के आधार पर उस चीज को याद रख सकते हैं। फिर टाटा के कुछ पावर प्लांट्स की भी यहाँ पे बात हुई है। स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना, बिकॉज दीज आर प्राइवेट कंपनीज एंड आई डोंट थिंक यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क वेरी स्पेसिफिक फैक्टॉइड्स रिलेटेड टू दिस, बट आप कुछ कीवर्ड्स या टर्म्स को जरूर याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बात हुई है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू वी हैड अ क्वेश्चन ऑन दिस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, प्रीलिम्स में एक बार ये टॉपिक पूछा जा चुका है। फिर एक और लास्ट टर्म जो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डेटा सेंटर डेवलपर्स इन इंडिया आर एमिंग टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, व्हिच इज इंडिकेटेड बाय अ लो पावर यूसेज एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस रेशियो। तो दिस पावर यूसेज इफेक्टिवनेस रेशियो टेल्स दैट कितना पावर आप इस्तेमाल कर रहे हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सेम डेटा। तो जितना इफेक्टिव ये रेशियो होगा, उतना ही कम पावर का इस्तेमाल हो रहा है टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ डेटा। In India, the PUE averages around 1.9, while for green data centers, the PUE is lower at 1.3. So the more green your data center is, the lower PUE you are going to have, and the better it is going to be for the economy and for the environment as a whole. तो उस संदर्भ में इस डेट आर्टिकल में कुछ अच्छे फैक्टॉइड्स, कुछ अच्छा डेटा लिखा हुआ है जो मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स नोट डाउन करें फॉर देयर फ्यूचर प्रिपरेशन। With this, I would now like to invite Kanhaiya sir to take this discussion forward. थैंक यू सर। आज कुछ इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल है मेरे पास जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट आर्टिकल जो है, एज यू कैन सी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इसमें स्पेशली इसमें फोकस किया है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रोज ड्यूरिंग 2017-18 टू 2022-23। तो ये एक नई स्टडी है बाय द इकोनॉमिक एडवाइजरी कमिटी और प्राइम मिनिस्टर। तो इसने एक स्टडी किया है इस डाटा पे जिसमें कंपेयर किया है 2017-18 टू 2022-23। तो ये जो कंपैरिजन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट ट्रेंड है एक टाइप से, ठीक है। तो इसमें कुछ डाटा, इसमें काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं जो आंसर्स में हम यूज़ कर सकते हैं और प्रीलिम्स में भी आ सकता है डायरेक्टली, जिसे आपसे ट्रेंड पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज दैट female labor force participation rate increased in almost all states during this particular period। और इसमें भी हम आगे देखेंगे विथ रूरल एरियाज सीइंग लार्जर गेन देन अर्बन एरियाज। तो रूरल एरियाज हैं इसमें जो गेन है, इंक्रीमेंट है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। सो अदर इंफॉर्मेशन हम यहाँ देखेंगे, स्टेट्स सच एज बिहार, पंजाब एंड हरियाणा हैव कंसिस्टेंटली रिपोर्टेड वेरी लो लेवल ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। And next data which is important is this: Haryana and Punjab are amongst the richest state within India, while Bihar is the poorest. But ultimately, we can see all three states have low female labor force participation rate. इसके बाद नेक्स्ट जो डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स को नोट डाउन करना है कि रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहाँ से इंक्रीज हुआ है, फ्रॉम 24.6% इन 2017-18 टू 41.5% इन 22-23। सिमिलरली अर्बन एरियाज का हम देखें तो इट इंक्रीज्ड फ्रॉम 20.4 इन 17-18 टू 25.4% इन 22-23। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसका एक टेबल बना के इसको याद करना चाहिए। देन कुछ इंफॉर्मेशन और है इसमें। फॉर एग्जांपल, there has been consistent rise in the female labor force participation from 17 to 18। ये हम देखेंगे कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है जो इंपॉर्टेंट है, यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम देखेंगे इसमें कुछ फैक्टर्स भी दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दे से दैट मैरिड मेन कंसिस्टेंटली एग्जिबिट हायर लेबर फोर्स participation rate across states, and while marriage significantly reduces female labor force participation rate। तो दोनों में ये अपोजिट ट्रेंड देखा गया है कि इन केस ऑफ मेल मैरिज जो है इट लीड्स टू, इट एग्जिबिट्स हायर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, एंड इन
females, it is a negative factor. We can say it significantly reduces female labor force participation rate. सिमिलरली एज ग्रुप भी मेंशन है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के लिए 30 टू 40 इयर्स की एज में ये पीक करता है। सिमिलरली मेल के केस में 30 टू 50 इयर्स पे पीक करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अमंग द ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो सबसे लोवेस्ट रेट जो दे रखा है इसमें बिहार का दे रखा है, जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए इन केस दे हैव केस स्टडी विच कैन बी मेंशन इन ऐसे पेपर और एथिक्स पेपर, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है डाटा। एट द सेम टाइम आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इंप्रूवमेंट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, रूरल एरियाज में, विद नागालैंड अरुणाचल प्रदेश लीडिंग अमंग द स्टेट्स इन द रीजन। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश का एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फॉर स्पेशली फीमेल वो ज़्यादा है। सिमिलरली नॉर्दर्न स्टेट्स में देखेंगे तो जैसे हमने डिस्कस किया पंजाब एंड हरियाणा ने काफ़ी लो रिकॉर्ड किया है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अच्छा, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है, इसमें हम देखेंगे इसका कभी हम फॉर्मूला डिस्कस करें तो जो टोटल नंबर ऑफ लेबर फोर्स है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें टोटल लेबर फोर्स में हम एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों टाइप के लोगों को कंसिडर करते हैं। अनएम्प्लॉयड को क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, बिकॉज दे आर विलिंग टू टेक एम्प्लॉयमेंट एनी टाइम। तो ऐसा नहीं कि वो अवेलेबल नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो दे आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो इस टाइप से हम इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं। सो दीज डाटा इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स को यूज करना चाहिए प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में। So this was all from my side, and with this, I conclude today's session. And thank you so much.